السلام علیکم، میں سید ضیاء الدین آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں قاصد ہند ٹی وی نیوز چینل پر۔ آج پھر ایک بار ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمشاد قادری صاحب، آل انڈیا مائنورٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ۔ آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کون سی ریاست اس وبا کے دوران بہتر کام کر رہی ہے اور مہنگائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمشاد قادری صاحب۔ بہت شکریہ جناب ضیاء الدین صاحب، بڑا ہی اچھا سوال آپ نے کیا، کیونکہ یہ حالات حاضرہ پہ بیحد اہم ضروری سوال ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، کیونکہ جب سے یہ کرونا کی مہاماری ہوئی ہے مختلف ریاستیں مختلف انداز میں کام کر رہی ہیں، اور خصوصی طور پہ میں چندر شیکھر راؤ صاحب کے نالے میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ دلی جیسی ریاست میں کرونا مہاماری سے جس طریقے سے مسٹر کیجریوال نے کام کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے ریاست کے انتظامات کو بڑے اچھے انداز میں چلاتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ صحیح ایڈمنسٹریٹر وہی ہوتا ہے جو عوام کی جو ہے صحیح طریقے سے خدمت کرے اور تمام طریقے کی سہولات ان کو بہم پہنچائے جائیں۔ میں خصوصی طور پر چندر شیکھر صاحب سے یہ بات کہنا چاہوں گا، ان کے نالج میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ عام طور پر نظریہ یہ ہے کہ چاہے محمود علی صاحب ہوں یا پھر چاہے اور دوسرے وزراء ہوں تلنگانہ کے، ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ تلنگانہ ریاست ہندوستان میں نمبر 1 ریاست ہے جو عوام کی خصوصی طور پر جو ہے خدمت کر رہی ہے، ہر طریقے سے ان کو سہولتیں مہم پہنچائی جا رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس طریقے سے اروند کیجریوال اپنے عوام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، خصوصی طور پر خواتین کے لیے انہوں نے جو ہے بس کا سفر بالکل ہی جو ہے مفت کر دیا ہے، مفت پانی سپلائی کیا جا رہا ہے، مفت بجلی سپلائی کی جا رہی ہے، مفت دواخانوں میں علاج کیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے اسکولوں میں تعلیم کو بھی جو ہے بڑے اچھے انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ تو میں چندر شیکھر راؤ صاحب کو یہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ سوچئے کہ کس طریقے سے ایک چھوٹی ریاست جو حال ہی میں جو دوسرا جو ہے اس کا ان کا ٹرم چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی چھوٹی ریاست ہونے کے باوجود بھی، تمام تر مشکلات ہونے کے باوجود بھی اروند کیجریوال صاحب جس طریقے سے دلی کی حکومت جو ہے چلا رہے ہیں، عوام کو ہر طریقے سے سہولت بہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں غور کیجئے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے عوام کو سہولتیں پہنچانے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں۔ جس لیول پر اروند کیجریوال صاحب جو کام کر رہے ہیں، کیا آپ اس طریقے کو سوچتے ہوئے کیا وہ طریقہ آپ اپنا نہیں سکتے؟ اسی طریقے سے آپ کی پڑوسی ریاست میں جگن جو حال ہی میں چیف منسٹر بنے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے ہر طریقے سے جو ہے کرونا کا علاج آروگیہ شری میں کیا جا رہا ہے۔ وہاں جو لوگ بیمار ہوئے ہیں ان کو جو مالی طور پر جو ان کو جو فائدے پہنچائے جا رہے ہیں، اور ہر تقریباً پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اس بات کی جو ہے وہ انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ جتنا بھی علاج ہوگا حکومت کی جانب سے کرونا کا جو علاج ہوگا اس کو جو ہے تمام تر سہولیات جو ہے مالی فوائد بھی ان کو پہنچائے جائیں گے۔ تو میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ایک پڑوسی ریاست حال ہی میں جو ہے علیحدہ تلنگانہ ہونے کے بعد ریاست بنی ہے، ایک نوجوان جو ہے چیف منسٹر مسٹر جگن موہن ریڈی اس انداز میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی اس بارے میں سوچنا ہے کہ آپ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اب آپ پنجاب کا معاملہ لے لیجیے، پنجاب میں بھی کیپٹن امریندر سنگھ صاحب جو ہر طریقے سے عوام کو سہولت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی اپنے انداز میں کام کر رہی ہیں، اسی طریقے سے جو اور دوسری ریاستیں جو اپنے انداز میں کام کر رہی ہیں۔ میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس واسطے بھی خاص طور سے ان کی توجہ اس طرف منتقل کرانا چاہ رہا ہوں کہ جبکہ ہماری ریاست سارے ہندوستان میں مشہور ہے اچھے کام کرنے کے لیے، مالدار حکومت ہونے کے معاملے میں،
تو चंद्रशेखर राव साहब को चाहिए कि दूसरी रियासतें जिस अंदाज़ में आवाम की खिदमत का जज्बा लेके आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से इलाज मालजी की सहूलत वहाँ पहुँचा रही है, जिस तरीके से जो है कोविड पे काबू पाने की कोशिश कर रही है, तो आप भी इसके बात सोचते हुए आगे बढ़ते हुए ये बात कीजिए कि जिस तरीके से जगनमोहन रेड्डी ने आगे बढ़ते हुए आवाम की जो खिदमत का जज्बे के तहत आगे बढ़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब बढ़े हैं, ममता बनर्जी बढ़ रही है, और बहुत सी रियासतें हैं जो अपने अपने अंदाज में काम कर रहे हैं। तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से ये बात कहना चाहूँगा कि आप भी इस बारे में सोचिए कि किस तरीके से आप आवाम की जो है ज़्यादा से ज़्यादा फलाह बहबूद के लिए काम करते हुए आवाम को सहूलत पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे। और ख़ुसूसी तौर से मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का भी मुतालबा करना चाहूँगा कि आज महंगाई का हाल ये है कि कमर तोड़ महंगाई का हाल ये है कि गरीब आवाम एक जो है लीटर तेल ख़रीद कर अपने बच्चों की, अपने जो है ख़ानदान की कफ़ालत करने के लिए बेहद परेशानी के जो गुजार रहे हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि पिछले साल जो 5 लीटर का तेल 599 रुपये में जो है दिया जाता था, आज उसकी कीमत जो है 1100 रुपये के करीब आ पहुँची है। तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से ये बात मालूम करना चाह रहा हूँ कि हमारी रियासत सबसे अच्छी है, हमारी रियासत आपके जो है बयानात आते हैं कि हम आवाम को जो है सही तरह पर खिदमत कर सक रहे हैं, तो फिर क्यों आप ये बढ़ती महंगाई पर रोक नहीं लगा रहे हैं? अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि आवाम की सही तरीके से खिदमत हो, आवाम को सही तरीके से जो है 2 वक्त की रोटी मिले, तो ये जो है चोर बाज़ारी और ये जो कीमतें के दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए स्टिक विजिल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाम को सहूलत बताते हुए ये बढ़ती कीमतों को अगर आप कम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आवाम की सही खिदमत होगी। और जिस तरीके से दूसरी रियासतें आवाम के लिए खिदमत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप भी इस बात को सोचते हुए पड़ोसी रियासत में जिस तरीके से कोविड के मरीज़ों को पैसे दिए जा रहे हैं, तमिलनाडु में जो है कोरोना के मरीज़ों के लिए जो है पैसों की जो है मदद की जा रही है, आप भी इस बारे में सोचते हुए आगे बढ़िए। और ख़ास मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज पिछले 3-4 दिनों से अखबारात में ये न्यूज़ आ रही है कि हुकूमत की जानिब से जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो ज़्यादा रकम वसूल कर रहे हैं, उनके लाइसेंस जब्त करते हुए उनके जो है शोकास नोटिस इशू किए जा रहे हैं। ये खुश आइंद बात है, ये चंद्रशेखर राव साहब के लिए भी अच्छे है और आवाम के लिए भी जो बोझ आवाम के ऊपर पड़ रहा है वो बोझ को कम करने के लिए आप स्टिक ईजिल रखते हुए इन तमाम के जो है हालात पे जो है गौर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को सहूलत पहुँचाने की आप कोशिश करेंगे। खादरी साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, पिछले 6 महीनों से किसान एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत अपनी हरदर्मी पर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही वक्त का अहम सवाल आपने किया ज़ियाउद्दीन साहब। मैं ख़ुसूसी तौर पर यह बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन हो या जितनी भी मिली समाजी सियासी तंजीमें हैं, उन सब को आगे बढ़ते हुए इन किसान तहरीक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है तायद में उनके आगे आना चाहिए। क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि जो किसान 2 वक्त की रोटी हमारे को मुहैया करता है, ख़ुद भूखा रहता है, मगर उसके बावजूद भी तमाम हिंदुस्तान की आवाम को जो है पैदावार करते हुए उनको 2 वक्त की रोटी मुहैया करता है, अनाज मुहैया करता है। और ख़ास तौर से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस धूप में, बारिश में, सर्दी में पिछले 6 महीनों से मुसीबत उठाते हुए जो वो लोग अपने मुतालबात मनाने के लिए आप जो है स्ट्राइक पे बैठे हैं, मगर हुकूमत की हरदर्मी की वजह से उनको नित नए तरीके से परेशान किया जा रहा है। कभी खालिस्तान कहा जा रहा है, कभी टेररिस्ट कहा जा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब से ये बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि कम से कम जो किसान आपके लिए दिन रात मेहनत करते हुए आपके जो है 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम वो करता है, वो ख़ुद भूखा रहता हुए आपके लिए जो है 2 वक्त की रोटी मुहैया करता है, आपके लिए अनाज पैदा करता है, आपके लिए हर तरीके की सहूलत पहुँचाता है। अगर यही किसान अगर सो जाएगा, अगर यही किसान खेती बाड़ी नहीं करेगा, तो आज सारी दुनिया में एक ख़ास साली का जो है मामला पैदा हो जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और मरकज़ी हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारों से और स्टेट गवर्नमेंट के तमाम चीफ मिनिस्टरों से, तमाम ज़िम्मेदारों से इस बात की मैं
पुरजोर अपील करना चाहूँगा, मुतालबा करना चाहूँगा कि इन किसानों की मदद करते हुए उनके जो भी मुतालबात हैं उनको पूरा करते हुए इस बात का सबूत देंगे कि जो किसान दिन रात 24 घंटे अपनी मेहनत करते हुए आपको दो वक्त की रोटी मुहैया करता है, आपके जो है जीने के जो है तमाम तर सामान मुहैया करता है, उन्हीं किसानों के साथ इस तरीक़े का जो है सौतेलाना रवैया जो है इख्तियार करना इंतहाई जो है शर्म की बात है। मैं मरकज़ी हुकूमत से फिर एक मरतबा इस बात की गुजारिश करूँगा, इस बात की अपील करूँगा कि जो किसान मुसीबत की दौर में भी हिंदुस्तान का साथ दिए, हिंदुस्तान की तरक्की में जो है किसानों का बहुत बड़ा हाथ है। और इस मौके पर मैं नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मैं पुरज़ोर मुतालबा करना चाहूँगा कि उनके जितने भी मुतालबात हैं उनको जो है हल करते हुए आप इस बात का सबूत देंगे कि आप किसानों के साथ हैं, किसानों के हमदर्दी का आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी है। और जो भी कीमत जो है उनके ख़रीद व फ़रोख्त की लगाई जा रही है सही तरीके से अगर लगाएंगे तो आने वाले दिनों में आपकी भी नेक नामी होगी। और जो किसान नित नए तरीके से परेशान किए जा रहे हैं, जो आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे खेतों में काम करते हुए आपके जो है दो वक्त की रोटी मुहैया करते हैं, तो मैं नरेंद्र मोदी साहब से कहूँगा कि आप हड़दंगरी छोड़ दीजिए और किसानों के जितने भी मुतालबात हैं उनको हल करते हुए आप एक सेकुलर प्राइम मिनिस्टर होने का जो है एक सबूत पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खादरी साहब, आप हमारे टीवी स्टूडियो में आए और अपने ख़यालात का इजहार किया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे रुख़्सती चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।